Good morning, children. Welcome to English class. This is session 2, the continuation of the story Ishwaran the Storyteller. In our previous class, we have read that Mahendra was a junior supervisor in a firm. His job made him move every now and then. He was a bachelor. He had a cook named Ishwaran. Ishwaran accompanied Mahendra wherever he went and was therefore greatly attached to him. He not only cooked for Mahendra and washed his clothes but also to tell him stories in a very interesting manner. Ishwaran loved to read popular Tamil thrillers in his leisure time. As a result, he innovated his own thrillers and would tell about it to Mahendra. Mahendra enjoyed listening to them because of the inimitable way in which they were told. Once he told Mahendra a story about how he controlled a wild elephant that had gone mad. He told that he came from a place famous for timber. The logs there were carried on to the lorries by elephants. They were huge, well-fed beasts, but when they turned wild, not even the most experienced mahout could control them. One day, the elephant entered the school ground where children were playing, breaking through the bricks wall. Children and teachers got terrified and rushed to the safe place. But Ishwaran was not scared. He moved towards the mad tusker with a cane in his hand and hit its third toenail. The beast shivered from head to foot and then collapsed. Every day, Ishwaran would narrate one or two stories full of adventure, horror, and thrill. Sometime Mahendra felt that the story was a fiction, but still he enjoyed listening to it. As there was no TV set at the place where he lived, these stories were a source of entertainment for Mahendra. So, children, let's read the remaining part of the story now. One morning, when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." Here, auspicious means good. Delicacies means tasty food. Spirit means soul of the dead. Ancestor means elders of the family. So, children, here one morning Mahendra was having his breakfast. Ishwaran asked him if he could prepare a special meal for dinner as it was a good day. He added that on that day they prepare special food for the souls of the dead elders of the family. So children, यहाँ पे जो ईश्वरन है वो एक दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के समय महेंद्रा से परमिशन लेता है कि क्या मैं आज डिनर कुछ स्पेशल बनाऊं। तो ये जो महेंद्रा है वो समझ नहीं पाता है, तो वो खुद बताते हुए कहता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज के दिन जो हम फूड बनाते हैं वो डेड जो एल्डर्स हैं उनकी सोल के लिए बनाते हैं। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural.
One morning, when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." Here, auspicious means good. Delicacies means tasty food. Spirits means souls of the dead. Ancestor means elders of the family. So children, यहाँ पर एक बार जो सुबह के समय महेंद्रा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, उसी समय ईश्वरन महेंद्रा से परमिशन लेता है और कहता है कि सर, आज का डिनर मैं स्पेशल बनाना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। क्योंकि आज का डे बहुत ही ऑस्पिशियस है, क्योंकि जो ट्रेडिशन है हमारे अनुसार, उस ट्रेडिशन में आज के दिन जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी स्पिरिट्स आती है और हम उनके स्पिरिट्स के लिए ही कुछ अच्छा सा भोजन बनाते हैं। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. Here children, culinary means related to cooking. Garish means something which is too colorful and fancy that it is disliked. Supernatural means related to ghosts and spirits. Ishwar had preparing a delicious dinner and Mahendra praised his cooking skills. Ishwaran was happy on being praised, but all of a sudden started narrating a detailed story relating to ghosts and supernatural powers which was disliked by Mahendra. So children, ईश्वरन ने उस दिन रात को बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना बनाया, जिसे खाकर महेंद्रा बहुत ही खुश हुआ। उसने ईश्वरन को एप्रिशिएट भी किया, लेकिन उस दिन ईश्वरन ने महेंद्रा को एक ऐसी स्टोरी सुनाई जो कि भूत प्रेत से भरी हुई थी, और उस स्टोरी में उसने कुछ घोस्ट के सुपरनैचुरल पावर के बारे में बताया, जिसके कारण ये कहानी महेंद्रा को पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि वह इन सब चीज़ों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता था। उसके लिए भूत प्रेत कोई मतलब नहीं रखते। तो जब ईश्वरन भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाने लगा तो उसे लगा कि ये सब सिर्फ बकवास है। उसे बिल्कुल भी उसकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं आया। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started. Mahendra was jerked out of the pleasant river he had drifted into after the satisfying meal. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन कंटिन्यूड। तो यहाँ पर जो ईश्वरन है वो खाना खाने के बाद, जैसे कि वो हमेशा रात को कहानियाँ सुनाया करता था, तो उस रात भी उसने महेंद्रा को कहानी सुनाना शुरू किया। खाना खाने के बाद महेंद्रा बहुत अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि ईश्वरन जो है खाना बहुत अच्छा बनाता था, तो वो भी सेटिस्फाइड था। और जब ईश्वरन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो उसने कहा कि सर, आप जानते हैं
जिस एंटायर फैक्ट्री एरिया पर आज हम काम कर रहे हैं, ये कुछ सालों पहले यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। यानी ये क्या था, यहाँ पर जो भी लोग मर जाते थे उसको दफना दिया जाता था। ये प्लेस वही प्लेस है। और उसके बाद वो बताता है कि एक्चुअली में मैं तो पहले ही दिन समझ गया था कि ये जो है ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही दिन जब मैं बाज़ार से सब्ज़ी खरीद करके आ रहा था तो मैंने रास्ते में आते वक्त एक खोपड़ी देखी। जैसे जब लोग डेड हो जाते हैं तो उनकी हड्डियाँ दिखती है ना, जब गड्ढा खोदो तो उसी तरह से ये बताता है कि मैंने स्कल देखा, खोपड़ी देखी। और मैं तो अक्सर जब भी आता जाता रहता हूँ तो मैंने तो बहुत सारे बोन्स और स्कल देखे। और ऐसा स्टोरी बताते हुए वो कहानी को आगे बढ़ाता है। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fortress in its arms. Here, shriveled means wrinkled and shrunken. That means जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना चेहरे पर, वही। Foetus means unborn baby. So children, यहाँ पर जो ईश्वरन है वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए आगे महेंद्र को बताता है कि मैंने बहुत सारे भूतों को देखा है और मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं डरता नहीं हूँ सर। लेकिन क्या करूँ, मैं एक वुमेन को मैंने देखा है जो कि रात को 12 बजे अपीयर होती है और वो फुल मून नाइट में ही दिखती है। तो सर मैं बहुत सारे भूतों को देखा हूँ लेकिन मुझे डर नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये जो वुमेन है जो कि फुल मून नाइट के दिन यानी पूर्णिमा की नाइट के दिन रात के 12 बजे जब मैं इसको देखता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ। क्यों घबरा जाता हूँ? क्योंकि इसका जो चेहरा है बहुत ही हॉरिबल है और इसको मैंने देखा हुआ है कि ये अपने गोद में एक अनबॉर्न बेबी को लेकर के इसको मैंने आधी रात को देखा है, रात के 12 बजे। तो ये जो ईश्वरन है ये महेंद्र को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो जगह है जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर ये काम चल रहा है, ये पहले यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, तो आगे वो क्या बताता है? वो ये भी बताता है कि यहाँ पर आए दिन भूत देखने को मिलते हैं और वो बताता है कि भूत से तो मुझे डर नहीं लगता, मैं बहुत ब्रेव हूँ सर, लेकिन क्या करूँ, एक वुमन जो है उसी से मुझे बहुत डर लगता है जो कि रात के 12 बजे मुझे दिखाई देती है और पूर्णिमा के दिन ही दिखाई देती है, इसलिए मैं बहुत डर रहा हूँ। आगे देखते हैं। Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. Figment means production. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे अब महेंद्र थोड़ा सा घबरा तो जाता ही है, लेकिन क्या करे, वो ईश्वरन से कहता है कि फालतू बातें मत करो, कोई भी भूत नहीं होता दुनिया में, ना भूत पिशाच कोई भी स्पिरिट नहीं होती। तो
तुम पागल हो गए हो और कह रहे हो कि तुम्हें भूत दिखाई देता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। इसलिए ऐसा करो, अपना इलाज कराओ और इस तरह से नॉनसेंस बातें मत करो। कहना क्या चाह रहा है इस जो महेंद्रा, यानी महेंद्रा भी थोड़ा बहुत डर रहा है, लेकिन वो उसको डांटता है कि ये फालतू बकवास करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो और मुझे डराने की कोशिश भी मत करो। ठीक है, जब वो इतना कहता है ईश्वरन को, तब क्या होता है देखिए आगे। He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days. But the next morning, he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. अब महेंद्रा ने क्या सोचा था, क्योंकि महेंद्रा ने ईश्वरन को डांट दिया था कि फालतू बकवास न करो, फालतू चीज़ों के बारे में मत बोलो, मुझे डराओ नहीं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। तो उसको ऐसा लगा, महेंद्रा को ऐसा लगा कि आज मैंने ईश्वरन को बहुत डांटा है और अब वो नाराज़ हो जाएगा मुझसे और फिर मुझसे बात नहीं करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ चिल्ड्रन। अगले दिन सुबह, जैसे ही सुबह हुआ, ऐसा लगा मानो ईश्वरन रात की सारी बातें भूल चुका था और वो एकदम चीयर अप माइंड में वापस महेंद्रा के पास आया और बातचीत करने लगा। महेंद्रा ने क्या सोचा था कि अब ये गुस्सा गया है, अब ये 2-3 दिन तक तो मुझसे बात नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ चिल्ड्रन? ना, बिल्कुल नहीं हुआ। वो दोबारा एकदम खुश मन से वापस से, बल्कि पहले से ज़्यादा टॉकेटिव हो गया। आगे देखते हैं। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. Here children, vicinity means nearby area. Clear? So children, यहाँ पे क्या हो रहा है कि महेंद्रा ने ईश्वरन के सामने तो बहुत ज़्यादा डांट लगाई और अपने आप को ब्रेव बताया कि हाँ ऐसा कोई भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है, उसे डांट करके तो भगा दिया। लेकिन अब उसको उसकी बातें सुनकर, यानी ईश्वरन की बातें सुनकर महेंद्रा को ऐसा लग रहा था, वो दिखा तो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, मैं इस पर भरोसा नहीं करता, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अब उसे अंदर से घबराहट होने लग गई और वो अनईजी फील करने लग गया। क्यों अनईजी फील करने लगा चिल्ड्रन? क्योंकि जो ईश्वरन है उसने उसे स्टोरी बताई थी और इसलिए अब वो क्या करता था कि जहाँ पर उसका बेड लगाया था, यानी जहाँ पर वो सोता था, उसके बगल में ही एक खिड़की थी और अब उसके दिमाग में ये बात आने लग गई कि अरे खोल करके मैं खिड़की देखता हूँ। जैसे कि ईश्वरीन ने बताया था कि भूत प्रेत उसने देखा एक वुमेन को, बहुत ही अगली वुमेन है और उसके हाथ में एक अनबॉर्न बेबी लिए हुए है। तो इस चीज़ को स्पष्ट देखने के लिए वो जो उसके बेड के पास जो खिड़की रहती है, उस खिड़की को बार बार खोलता है और बाहर अंधेरा ही अंधेरा फैला रहता है और देखने की कोशिश करता है, ये एहसास करने की कोशिश करता है कि कहीं वाकई में ईश्वरन के द्वारा बताई गई वो घोष तो नहीं है। लेकिन जब भी वो बाहर देखता है उसे सिर्फ अंधेरा अंधेरा ही दिखाई देता है और कुछ माइल्स अवे पर कुछ लाइट्स जल रही होती हैं फैक्ट्रीज़ की,
सिर्फ उसे वो लाइट ही चमकती हुई दिखाई देती हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. अब देखिए चिल्ड्रन, ईश्वरन की स्टोरी का महेंद्रा पर कितना बड़ा असर हुआ। वो महेंद्रा जो कि रात को, यानी जब फुल मून उगता था तो रात को उसे बाहर देखना बहुत अच्छा लगता था, यानी फुल मून लाइट में नेचर को देखना बहुत अच्छा लगता था। किसको? महेंद्रा को। लेकिन ईश्वरन ने इतना ज़्यादा उसके दिमाग में भय पैदा कर दिया कि अब उसकी ये जो काम करता था, बाहर देखता था, अब उसे डर लगने लग गया। अब वो खिड़की खोलकर, भले ही पूर्णिमा की रात क्यों ना हो, अब उसे डर लगने लग गया और वो खिड़की खोलकर बाहर बिल्कुल भी नहीं देखता था। ठीक है, चाहे वो फुल मून नाइट ही क्यों ना हो। आगे देखते हैं चिल्ड्रन। वन नाइट महेंद्रा वॉज woken up from his sleep by a low moan close to his window. अब क्या होता है, एक दिन रात के समय जो महेंद्रा होता है वो सो रहा होता है कि अचानक उसको खिड़की के बाहर से कुछ रोने की आवाज़ सुनाई देती है। क्लियर? At first he put it down to a cat prowling around for mouse. पहले तो उसने सोचा कि कोई बिल्ली होगी और वो आवाज़ कर रही है, और जो चूहे होते हैं चूहे को पकड़ने के लिए वो कुछ ये आवाज़ कर रही है। वो पहले यही सोचता है कि बिल्ली चूहों को पकड़ रही है, उसी के कारण ये आवाज़ आ रही है। लेकिन आगे, बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। बाद में उसे ऐसे लगा, बाद में उसे ये फील हुआ कि अरे बिल्ली की तो ये आवाज़ नहीं लग रही है, क्योंकि बिल्ली की आवाज़ चिल्ड्रन पता पड़ती है, ये आवाज़ कुछ अजीब सी है, यानी उसको ये श्योर हो जाता है कि ये आवाज़ बिल्ली की नहीं है। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. अब चिल्ड्रन घबरा तो रहा था, अब उसको क्यूरोसिटी हो रही थी, उत्सुकता तो इतनी हो रही थी कि वो जल्दी से खिड़की खोले और बाहर देखे कि आखिर ये आवाज़ किसकी है, कौन है जो ये आवाज़ कर रहा है। लेकिन उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो खिड़की खोल करके बाहर देखे। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। अब क्या हुआ चिल्ड्रन, वो जो आवाज़ थी रोने की, वो आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, और वो आवाज़ उसे और ज़्यादा सुनाई दे रही थी। He could not resist the temptation anymore. अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि आखिर क्या करूं, कैसे करूं, कैसे मैं खिड़की खोलूं, कैसे मैं बाहर देखूं, ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी anyhow, lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the writer's white sheet of moonlight outside. So children, उसने क्या किया, करेज गैदर किया और उसने हिम्मत जुटाई और जो विंडो सिल होती है ना, जैसे जहाँ से खिड़की नीचे से शुरू होती है, वहाँ बैठ गया पहले। और उसके बाद उसने सोचा कि मैं अब धीरे धीरे ऊपर उठूंगा, धीरे धीरे खिड़की को खोल करके बाहर देखूंगा। उसके बाद क्या होता है, There's not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. जब वो बाहर देखता है ना चिल्ड्रन, तो उसे दिखाई देता है कि बाहर उसको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कुछ फॉर्म, मतलब कुछ आकृति बन रही है, जैसे एक ह्यूमन फिगर बन रहा होगा, कुछ ऐसा उसको महसूस होता है। महेंद्रा broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting. पैंटिंग मीन्स बहुत ज़्यादा घबराहट से लंबी सांसें भरना, हाफना। ठीक है,
तो यहाँ पर जब ये दृश्य देखा महेंद्रा ने कि खिड़की से बाहर कुछ ऐसा अंधेरे में कुछ आकृति बन रही है, उसको कुछ धुंधला सा ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई है वहाँ पे, एक ह्यूमन फिगर दिखाई दे रहा है, वो बहुत घबरा गया चिल्ड्रन, और वो वापस से दौड़ करके आकर के हांफता हुआ अपने बिस्तर पर फिर से ले गया, वो लेट गया और वो पसीना पसीना हो गया. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. उसके बाद वो जब हाँफने लग जाता है, घबरा जाता है, उसके बाद थोड़ी देर तक लेटा रहता है, तो धीरे धीरे वो अपने आप ये महसूस करता है कि नहीं नहीं, भूत प्रेत नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे दिमाग की उपज है. यानी क्योंकि ईश्वरन ने उसके दिमाग में ये डर भर दिया था, और उसी डर के वजह से ये जो महेंद्रा है ये सोचता है कि ये मेरे दिमाग की फतूर है, मेरा दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि बाहर कोई है. देखो, जब कभी हम रात में ऐसे सोचते हैं ना कि बाहर कोई है, तो हमें ऐसा महसूस भी होने लग जाता है. उसी तरह से ये जो महेंद्रा है वो ये सोचता है कि कुछ नहीं, ये बात सच नहीं है, ये मेरे ही दिमाग की एक ट्रिक है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बातें ईश्वरन ने भर दी है कि पूर्णिमा की रात को वो अगली लुकिंग जो घोस्ट है वो दिखाई देती है, तो ये बात मेरे दिमाग में भरी है, इसीलिए मुझे वो आकृति बाहर देखने पर दिखाई दे रहा है. ऐसा हकीकत नहीं है, ये सब एक मेरा जो माइंड है, ये माइंड में जो माइंड ने क्रिएट की है वही इमेज मुझे दिखाई दे रही है, ये कुछ भी हकीकत नहीं है. Clear, children? By the time he had got up in the morning, he had a bath and come out to have his breakfast. The horror of the previous night had faded from his memory. Children, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो महेंद्रा है जिसने कि रात में बहुत सी बातों को महसूस किया था, उसे ऐसा लगा कि खिड़की के बाहर कोई घोस्ट है, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी. लेकिन जब वो सुबह उठा, उसने अच्छे से नहाया धोया, ब्रेकफास्ट किया, और वो जो रात को जो उसने एक्सपीरियंस गेन की थी रात की, वो सब भूल गया. ठीक है, यानी उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि जो रात में जो भी मैंने अनुभव किया था वो अनुभव कोई सही अनुभव नहीं है, बल्कि वो सारी बातें दिमाग की है, दिमाग की फतूर है, जो मैंने ऐसी चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस किया, सोचा. Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the foetus in its arm? You were so angry with me for imagining things." तो अब जैसे ही वो बाहर यानी अपने काम पर जाने के लिए महेंद्रा घर से बाहर स्टेप करता है, उसी समय ये जो ईश्वरन है वो उसका लंच जो पैक करके रखा होता है वो उसे पकड़ाता है, और पकड़ाने के बाद उसे ग्रीट भी करता है, और उसके बाद एक हल्की सी स्माइल करते हुए, ऐसी स्माइल जो कि ऐसा लगे कि वो बनावटी स्माइल है, तो इस तरह से स्माइल करते हुए वो याद दिलाता है महेंद्रा को कि सर, उस दिन जब मैंने आपको उस घोस्ट, फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था, तो आपने मुझे बहुत डांटा था और मेरे को ये कह करके भगा दिया था कि ये सब तुम्हारे दिमाग की बदमाशी है, यानी दिमाग में तुम उल्टी सीधे चीज़ें इमेजिन करते हो, ये सारी चीज़ें
इमेजिनरी है, ऐसी कोई बात सच नहीं होती है। तो ऐसा करके आपने मुझे डांट करके भगा दिया। लेकिन सर मालूम है मुझे कल कुछ ऐसा महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? आगे देखते हैं क्या कहता है। वेल यू saw her yourself last night. I came running here. The sound of moaning that was coming from your room. और क्या कहता है? कहता है कि सर मुझे सब मालूम है कि रात में क्या हुआ है आपके रूम में। मैंने भी आवाज़ सुनी थी और उस आवाज़ को सुन करके मैं आपके रूम तक आया था और मुझे वो रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कि आप तो रूम में ही थे तो नेचुरली आपको भी सुनाई दे ही रही होगी। तो कुल मिलाकर के जो ये ईश्वरन है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रात को जो भी महेंद्रा ने एक्सपीरियंस किया था वो बात सब सच है और महेंद्रा से भले ही वो छिपा रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है, ब्रेव बनने की कोशिश कर रहा है कि भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होती है। लेकिन वो रियलाइज करवा रहा है ईश्वरन कि सर आपके रूम से रोने की आवाज़ मैंने सुनी थी और निश्चय ही आपने भी सुनी होगी। क्लियर? आगे देखते हैं। A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. ऐसी बातें सुन करके महेंद्रा मतलब ऐसा लग रहा था मानो कि वो ठंडा पड़ गया हो एकदम, मतलब डर गया, एकदम घबरा गया। क्यों घबरा गया? क्योंकि उसे लगा कि अभी तक तो मैंने ये सोचा कि ये सिर्फ मेरे दिमाग की फतूर है, मेरा दिमाग ऐसा सोचता है इसीलिए मुझे ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अब जब उसने ईश्वरन के मुंह से ये सुना कि सर मुझे भी वो आवाज़ आपके रूम से सुनाई दे रही थी, तो उसे 100% यकीन हो गया कि अगर महेंद्रा को भी सुनाई दे रही है यानी स्पिरिट है, घोस्ट है, रात की जो बातें हैं वो सच ही है। क्या किया उसने चिल्ड्रन? He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. उसने मौका ही नहीं दिया, उसने यानी ईश्वरन की सारी बातों को बिल्कुल सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया। और he hurried away to his office and handed in his paper resolving to leave the haunted place the next very day. ठीक है, तो हॉन्टेड प्लेस मतलब भूत प्रेत जहाँ रहते हैं। तो उसने क्या किया? हॉन्टेड प्लेस को उसी दिन छोड़ने का निश्चय कर लिया और उसने एक रेजिग्नेशन लेटर लिखा और उस लेटर को अपने जो बॉस है उसको देने के लिए वहाँ पर गया और अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। क्यों रिज़ाइन दे दिया? क्योंकि उसे ये 100% यकीन हो गया था कि जिस जगह पर वो रह रहा है, जिस जगह पर उसका काम चल रहा है, वो एक हॉन्टेड प्लेस है। घबरा करके वो रिज़ाइन दे देता है। तो चिल्ड्रन आप समझ गए होंगे कि ईश्वरन कितना एक्सपर्ट था। उसने अपनी बातों से इतना अच्छे से महेंद्रा के दिल में, दिमाग में ये बातें डाल दी कि भूत प्रेत होते हैं, जबकि महेंद्रा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। ठीक है, यानी ये उसकी एक ऐसी कला थी जिस कला से उसने यकीन दिला दिया महेंद्रा को कि भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं। सो चिल्ड्रन, with this we complete the lesson. Thank you. So children, with this we come to an end of the chapter. Thanks for watching.